Okay, so let's get started. So today we will discuss a few questions of vowel ability. Okay, so firstly we will discuss some important courses for kids, and here are the courses. First one is C for beginners. Okay, this course started. This course started on 2nd of July. Okay, and you will get lifetime access for this course. Just register and purchase this course if you want to improve your knowledge for C. So second course is Java for beginners. So this course will deal with Java language. Okay, so you can purchase this course, and this course is also started on 2nd of July, and with lifetime access you will get this course. So you can see details, and you will get a link in the description box for these courses. Third course is web lab projects. This started at on 31st May with the lifetime access, and this is course for beginners who want to make projects, okay, in web lab. So they can purchase it, and this course, all the courses are discussed in basic to high level. Okay, so you can go through these courses if you want to improve your C language, Java language, and web lab projects. Next one is computational thinking with Scratch. So you can also purchase this course. It was started on 30th May, and this course have a lifetime access. You can go through the course, do register yourself for the course, and purchase it. Next course is learn to make apps in App Lab. So you can learn how to make apps in App Lab through this course, and basic to high level questions are discussed in this course. Okay, and the course price is rupees 299, and this was started on 15th May, and course has lifetime access. You can register it for this course. Next course is create game in Game Labs. So you can create games, okay, in Game Labs, and this course started on 1st of May with lifetime access. You can go through this course if you are interested to create games. Okay. Next one is create real world apps in App Labs. So you can also create. We have two courses related to App Lab. First one is learn to make apps in App Lab, and second one is create real world apps in App Lab. Okay, so this is the second course, and it started on 16th April, and this course also has lifetime access. You can go through the course. You will get links in the description box for these courses, and purchase it and take benefit from this course. Next course is machine learning with the help of Scratch. So you can purchase this course, and this course started on 26th of April with the lifetime access. Okay, so register yourself for this course and purchase it and take benefit of these courses. Next one is web design. Web designing for beginner. This one is the important one. You can design your website through this course or using HTML. Okay, and the price for this course is 399 rupees. And in this course, you will get concepts from basic to high level. Okay, you will have certain number of questions to solve them, and you this course started on 15th of April, and it also has lifetime access. So you can see this, that every course has lifetime access. This is the important thing. Okay, purchase once and study through these courses lifetime. Okay, so purchase it as soon as possible. Next course is Python programming. This is also for school students, so you can learn Python program in detail. Okay, and the price for the course is 299 rupees. It was started on 9 Feb, and this course also has lifetime access. So if you want to learn programming, then this course is the best one for you. So you can purchase it. Link will be in the description box.
Next course is first step to data structure and algorithms. Okay, so this was started on 15th of June. So do purchase it and take benefit from this course. And the last course is entrepreneurship, how to build massive valuable companies. This one is the best one. Okay, it was also started on 15th June. Okay, and you can register yourself for this course and you can take benefit for this from this course. Okay, so these are the courses for kids. You can purchase these courses and you can take benefit from these courses. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? I hope you all guys are doing well. So in today's session we will discuss some important questions of verbal ability, or we will do a practice set, ठीक है, of SSC examination. Okay, so previous year का ये set होगा जो आपकी upcoming examinations के लिए important होगा, क्योंकि इसमें जो भी questions होंगे सारे डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे. ओके, तो जितना जल्दी हो सके इसे शेयर करो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि बाकी लोग इसे ज्वाइन कर सकें और इसका बेनिफिट ले सकें. ओके, और हम भी स्टार्ट करेंगे अपना सेशन जल्दी. चलिए, सो फटाफट से इसे शेयर करना स्टार्ट कर दो ताकि बाकी लोग ज्वाइन कर लें और इसका बेनिफिट लेना स्टार्ट करें. जितना जल्दी हो सके शेयर करो इसे. मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग शेयर करिए इसे. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सभी लोग आंसर करिएगा इसका. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, select the most appropriate synonym of the given word. Abort. अबॉट का सिनोनिम आपको बताना. तो अबॉट मतलब होता है, अबॉट मीन्स ब्रिंग टू अ प्रीमेच्योर एंड बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम और फॉल्ट. क्या हो जाएगा? ब्रिंग टू अ प्रीमेच्योर एंड because of a problem or fault. ठीक है. हीट का मतलब क्या हो जाएगा? हीट का मतलब क्या हो जाएगा? हीट मतलब फील इंटेंस डिसलाइक फॉर. फील इंटेंस डिसलाइक फॉर. ओके, कंटिन्यू. ठीक है, कंटिन्यू तो हो नहीं सकता. कंटिन्यू मतलब होता है परसिस्ट इन एन एक्टिविटी और प्रोसेस. ठीक है. एंड मतलब हो जाता है अ टर्मिनेशन ऑफ अ स्टेट, और वी कैन से अ टर्मिनेशन ऑफ अ सिचुएशन. बिगिन मतलब begin means perform or undergo the first part of an action, or we can say of an activity. Okay, एक एक्टिविटी और एक एक्शन का फर्स्ट पार्ट का शुरू होना. ओके, चलिए. तो अबॉट का जो सिनोनिम हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी आपका एंड. क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्शन पढ़िए एंड फटाफट आंसर करिए. क्या हो जाएगा आपका? सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, करना है आपको. ओके, और आंसर करिए इसका. आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग व्हेन आई हैड हर्ड दैट सॉन्ग अगेन. क्या हो जाएगा? जो आपका हैड हर्ड है, ओके, ये आपका क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस में. किस में? आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में. और पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है जब हम बात कर रहे होते हैं एक्शन की जो पास्ट एक्शन मतलब पास्ट इंडेफिनिट से पहले हुआ होता है. ओके, यहाँ पे कोई ऐसा एक्शन नहीं है कि ये बता सके पास्ट परफेक्ट में होगा. ओके,
तो यहाँ पे क्या होगा आपका, वॉज यूज होगा, ठीक है, जो इस टेंस को, इस एक्शन को भी पास्ट में बताएगा, तो इट शुड बी आपका इट क्या हो जाएगा आपका, सेकंड फॉर्म लगाना है तो आई हर्ड हो जाएगा। सो ये होगा, आई हर्ड दैट सॉन्ग अगेन। चलिए रीअरेंज करिए इसे फटाफट से। रीअरेंज करो इसे फटाफट से। क्या हो जाएगा? सो जो करेक्ट रीअरेंजमेंट होगा वो होगा आपका फर्स्ट वाला, यानी सी डी बी है। तो सी से आपका सेंटेंस का स्टार्ट होगा। जो सी में जो है लिखा हुआ स्टेटमेंट वो स्टैब्लिश करता है सब्जेक्ट मैटर को। ओके, सो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा रीअरेंजमेंट करने के बाद। ओके, डी आपका स्टार्ट होता है भाई इवन दूस से, ठीक है, इवन दूस से। तो जो रेफर कर रहा है किसको, जो पीपल मेंशन हुए हैं सी में। ओके, जो पीपल मेंशन हुए सी में, तो इसका मतलब है आपका जो डी है वो सी के बाद आएगा। ओके, देन उसके बाद बी पे चलते हैं। बी आपका क्या है, एक लॉजिकल सक्सेसर है किसका, डी का, ठीक है, क्योंकि इसमें बात हो रही है पीपल इन द ऑफिस मेंशन, ठीक है, पीपल इन द ऑफिस मेंशन। ओके, सो बी आ गया इसके बाद। देन लास्ट में ए आएगा, ठीक है, उसमें आपका ऑल्सो यूज हो रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एलेबोरेट कर रहा है कि इसको बी सेंटेंस को, सो बी स्टेटमेंट को। सो ये हो जाएगा सी डी बी, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। चलिए आंसर करिए फोर्थ का। Select the word which means the same as the group of the given, having something more than required. So surroundings मतलब हो जाता है आपका ऑल अराउंड अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग। ओके, ठीक है। सरचार्ज मतलब होता है एडिशनल चार्ज और पेमेंट। ओके, सरोगेट, सरोगेट मतलब हो जाता है आपका सब्स्टिट्यूट, स्पेशली अ पर्सन, ठीक है, डेप्यूटाइजिंग फॉर अनदर इन अ स्पेसिफिक रोल और वी कैन से ऑफिस। सरप्लस मतलब हो जाता है आपका मोर देन व्हाट इज नीडेड और यूज्ड, एक्सेस, एक्सेस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा इसका फोर्थ वन, यानी आपका सरप्लस। फिफ्थ का आंसर करिएगा सभी लोग। क्या हो जाएगा? So we must get this post sent as soon as possible. Okay, चलिए, तो सेंड जो है वो बेस फॉर्म है वर्ब का, ठीक है, और ये आपको मोस्टली यूज होता है कहाँ, आपका प्रेजेंट टेंस में। ओके, क्या करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए किसी को। तो इट इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस एंड एन एक्शन दैट इज ऑकरिंग इन द प्रेजेंट। ओके, सो जैसे हम कह सकते हैं सेंडर गिफ्ट्स। ओके, जो सेंट है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है,
ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का, और ये आपका यूज होता है पैसिव वॉइस में. इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज अकर्ड इन द पास्ट. ओके, जैसे वी कैन से द लेटर हैज बीन सेंट. ओके, तो जो आपका सेंटेंस दिया गया है वो इंडिकेट करता है एक एक्शन को जिसमें सेंडिंग मस्ट बी डन वाला सेंस मिले. So it is not being done in present. Okay, we must use sent instead of sent to make the sentence correct. Okay, so we must get this post sent as soon as possible. 6 का आंसर करें, इंडायरेक्ट फॉर्म बनाए इसका फटाफट से. चलिए आंसर करिए सौरभ, आंसर करिए 6 का. सौरभ भाई आंसर करो. क्या हो जाएगा? सो इंडायरेक्ट फॉर्म बनाना है इसका. सो व्हाट आर यू गोइंग, द बॉय आस्क्ड हमने लिखा है, तो ये आपका क्या डायरेक्ट है. अगर हम इसका इंडायरेक्ट करेंगे, पहले तो ये भाई आपका इंटरोगेटिव है, दिख रहा होगा आप सभी को. ठीक है, ये क्या आपका वॉइस नहीं आ रहा, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऑडिबल हूं मैं? ओके, सो क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर. इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा. ठीक है, द बॉय आस्क्ड एज इट इज होता जाएगा, किससे पूछा, जेन से, तो जेन आएगा उसका ऑब्जेक्ट आस्क वर्ब का. ओके, जब वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो यही कंजक्शन हम यूज करेंगे, दैट लगाने की जरूरत नहीं, तो बिल्कुल करेक्ट है. ओके, अब जेन की बात है, जेन से बोला जा रहा है, तो जेन यहाँ पे आपका क्या है, फीमेल हमने जेन को कंसिडर कर रखा है, तो शी आएगा. इज नहीं आ सकता इससे पहले क्योंकि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, रॉन्ग हो जाएगा. शी वॉज गोइंग होगा, जेन वर नहीं होगा, शी आना चाहिए यहाँ पे. ओके, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है? तो टोल्ड भी नहीं आएगा, नहीं तो ये भी सही हो सकता था, आस्क्ड ही आएगा. ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, 2 मिनट है, सौरभ आंसर करिएगा इसका. ठीक है, पहले से पढ़ो फटाफट से, देन आंसर इट. आंसर करो भाई. In a way, adult education is education movement through the medium dash village schools. In the beginning, the dash were suspicious. It was hard to persuade dash to realize that they were really getting something. Dash the schools, they were not at all sure that they wanted their dash to leave their homes. चलिए आंसर करिए फटाफट से 7 का. सो फर्स्ट में देखो जो ऑफ है ना, बेसिकली ऑफ इज यूज टू इंडिकेट द एसोसिएशन बिटवीन टू थिंग्स. दो चीजों के बीच का एसोसिएशन अगर हमें डिनोट करना है, इंडिकेट करना है, तो ऑफ यूज करते हैं. इन इज यूज व्हेन समथिंग रिसाइड्स विद अनदर थिंग. ठीक है, कोई चीज रिसाइड करती है दूसरी चीज के साथ. ओके, बाय यूज होता है व्हेन समथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अनदर थिंग, मतलब पैसिव वॉइस बताने के लिए, डूअर कोई और है, ठीक है, वो बताने के लिए. फ्रॉम हम यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को या फिर ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए.
तो जो दिया गया सेंटेंस इन द गिवन सेंटेंस, द एसोसिएशन बिटवीन एजुकेशनल मूवमेंट एंड विलेज स्कूल्स कैन बी इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ, सो वी विल यूज ऑफ प्रपोजिशन। बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन द बिगनिंग द डैश वर सस्पिशियस। क्या हो जाएगा? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 2। सो 2 के लिए आंसर करो। देखो यहाँ पे एक नाउन चाहिए और वो नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि इसका जो वर्ब है वो आपकी वर्ब यूज हो रखी है, समझ रहे हो? ओके, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, चिल्ड्रन नहीं, ये देखो विलेज स्कूल्स, ठीक है, विलेजेस की हम बात करें, ठीक है, चिल्ड्रन नहीं, विलेजेस, द विलेजेस वर सस्पिशियस, ठीक है। तो जो प्रीवियस सेंटेंस है ना, इसमें जो राइटर है ना वो क्या कर रहा है, विलेज स्कूल्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो विलेज स्कूल्स है ना, ये इंडिकेट करता है दैट एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू विलेजर्स, ओके, इज बीइंग प्रोवाइडेड टू विलेजर्स। तो क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे विलेजर्स रिक्वायरमेंट होगा, ना कि चिल्ड्रन, ओके। चिल्ड्रन तो कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे विलेजर्स की हम बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, और इट मींस कौन सा वाला, ये वाला, थर्ड वाला। चलो आंसर करो फटाफट से। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9। सो इट वॉज हार्ड टू परसुएड डैश। परसुएड आपका क्या, टू परसुएड आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट आएगा प्रोनाउन या फिर आपका नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन ही है, हिम तो आएगा नहीं, अस भी नहीं आएगा, ओके। अब बेसिकली देम आएगा, क्योंकि राइटर अपनी बात नहीं कर रहा है, विलेजर्स की बात कर रहा है, तो उनके लिए हम देम यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। और दे तो सब्जेक्टिव तो आ ही नहीं सकता, ओके, बहुत सिंपल था। समथिंग डैश द स्कूल्स, चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4। they persuade them to realize that they were really getting something। अच्छा, उनको persuade, बहुत मुश्किल था उनको persuade करना और उनको रियलाइज करवाना कि उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। कहाँ से? स्कूल से, मतलब ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब फ्रॉम प्रपोजिशन, अभी बताया था मैंने फर्स्ट वाले में। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका अगला, इसका आंसर करो। चलो भाई आंसर करो। क्या हो जाएगा? दे वर नॉट एट ऑल श्योर दैट दे वांटेड देयर, ठीक है। दे मतलब चिल्ड्रन, वांटेड, सॉरी, द विलेजर्स वांटेड देयर, ठीक है, चिल्ड्रन टू लीव देयर होम, मतलब बाहर जाके पढ़ें, ठीक है, ये नहीं चाहते हो बाहर जाके जॉब करें, ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ओके। सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सर अब आंसर करिएगा। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द गिवन, ओके। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर। चलिए आंसर करिए फटाफट से। क्या हो जाएगा? सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर, ठीक है। तो इंडिग्नेशन मीन्स क्या होता है? एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। इंडक्शन मतलब होता है आपका द प्रोसेस और एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट ऑफ गिविंग राइज टू समथिंग, क्लियर है? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब होता है द एक्शन और फैक्ट ऑफ इंडल्जिंग,
इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब हो जाएगा आपका ब्रिंग समथिंग अंडर द कंट्रोल और वी कैन से डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल नेटिव टू एन एरिया। ओके, तो इंडिजिनेशन, इंडल्जेंस, इंडक्शन और इंडिग्नेशन। ओके, तो ये सारे वर्ड्स थे, आपको ध्यान रखना। बाकी मैंने मीनिंग भी डिस्कस कर लिया, नोट कर लीजिएगा। चलिए 13 का आंसर करो फटाफट से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ओके, तो आई प्लेड है, देखो स्पीकर जो कर रहा है ना बात, ठीक है, दैट ऑकर्ड इन पास्ट व्हाइल अनदर एक्शन वाज हैपनिंग। ठीक है, दूसरा चल रहा, तो द अदर एक्शन वाज द फादर वाज कमिंग होम। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एंड एट द सेम टाइम द स्पीकर वाज प्लेइंग। ठीक है, जब फादर आ रहे थे उस समय स्पीकर खेल रहा था। ठीक है, तो जो एक्शन है वो प्रोग्रेशन चल रहा होगा, मतलब उसके पिताजी के आने के डेफिनेट टाइम पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, तो इट शुड बी वॉज प्लेइंग। ओके, ना कि आपका प्लेड, तो ये गलत हो गया, ये हो जाएगा ये। क्वेश्चन फोर्थ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड करना है, एथलीट, कन्वीनियंस, डिलीमा और आपका गारंटी। Athlete, athlete, a person who is proficient in sports and other forms of physical existence. A will be the correct answer. ठीक है, ATHLET ये होता है करेक्ट स्पेलिंग। ओके, convenience is correct, the state of being able to proceed with something without difficulty. Dilemma हम कह सकते हैं situation in which a difficult choice has to be made between two or more alternatives. Okay, और गारंटी, guarantee a formal assurance that certain conditions will be fulfilled। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 15 वाला, फिल करें ब्लैंक को। माई कजन्स स्टडी ऑन द रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस 3 स्टेट्स हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डैश पीस ऑफ रिसर्च। चलिए आंसर करिए फटाफट से। My cousin study on reading habits of school children across 3 states has been recognized as a piece of research। क्या हो जाएगा इसका? So useless मतलब हो जाता है not fulfilling और not expected to achieve the intended purpose or we can say desired outcome। Negligent, negligent means failing to take proper care over something। Proud means feeling deep pleasure or we can say satisfaction as a result of one's own achievements। Okay, pioneering, pioneering मतलब हो जाएगा आपका involving new ideas or methods। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड है रिकॉग्नाइज, तो रिकॉग्नाइज यूज हुआ है, तो जिसका मतलब है द स्टडी दैट द स्टडी वाज एफिशिएंट एंड न्यू। ओके, सो पायनरिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, पायनरिंग मतलब हो जाता है इन्वॉल्विंग न्यू आइडियाज और मेथड्स, तो एज अ पायनरिंग पीस, एज अ पायनरिंग पीस ऑफ रिसर्च। 16 वाला द एसिड टेस्ट। चलिए आंसर करिए, द एसिड टेस्ट।
The acid test means a fact, event or situation that proves something. Okay, so क्या हो जाएगा इसका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वाला 17 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम. ब्लाइंड एले. ब्लाइंड एले जल्दी बताओ भाई, कमेंट करो आंसर. सौरभ. ब्लाइंड एले मतलब हो जाएगा सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड. ओके, ये आपका सही हो जाएगा. फोर्थ ऐसी स्थिति है जिसमें आगे कोई प्रगति नहीं की जा सकती और वी कैन से बंद गली, बंद रास्ता. ओके, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ भाई फटाफट से. देखो गाइडेंस आपका गलत है. GUIDANC होता है, ठीक है, नाउन है और यही गलत है, बाकी सही. गाइडेंस मतलब हो जाता है आपका एडवाइस और वी कैन से काउंसल. ओके, हेल्प एंड एडवाइस अबाउट हाउ टू डू समथिंग और अबाउट हाउ टू डील विथ प्रॉब्लम्स. ओके, कनेक्टेड विद योर वर्क, एजुकेशन और पर्सनल रिलेशनशिप. बिगनिंग मतलब आपका द फर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग और वी कैन से द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ समथिंग. ओके, सोल्जर, सोल्जर नाउन है और इसका मतलब होता है पर्सन हु इज इन एन आर्मी एंड वियर्स इट्स यूनिफॉर्म, स्पेशली समवन हु फाइट्स व्हेन देयर इज अ वॉर. शाइनिंग, शाइनिंग सेंडिंग आउट और रिफ्लेक्टिंग लाइट. क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. सभी लोग आंसर करेंगे. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. चलो आंसर करें पर फटाफट से. क्या हो जाएगा? The most appropriate blank to fill. Backward, backward means होता है having made less progress than is normal or expected. Dependent मतलब हो जाता है आपका requiring someone or something for financial or other support. Unified, unified मतलब हो जाता है make or become united, uniform or whole. Democration, democration मतलब हो जाता है आपका relating to or supporting democracy or its principles. Okay, चलो. सो बताओ भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना. सो यहाँ पे एक वर्ड है आपका सुजरेंटी. सो आपका सुजरेंटी में क्या हो जाएगा? आपका सुजरेंटी मतलब हो जाता है आपका द राइट ऑफ अ कंट्री और पार्टली कंट्रोल अनदर. ओके, ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट वर्ड हम यूज करेंगे वो हो जाएगा आपका डिपेंडेंट. ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. वी कैन से ओवर अ डिपेंडेंट स्टेट. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें भाई. मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सीड. चलो फटाफट आंसर करो. चलिए, एक्सीड, एक्सीड मतलब हो जाता है आपका एक्सीड मींस बी ग्रेटर इन नंबर और साइज देन. ओके,
इम्प्रूव मतलब हो जाता है मेक और बिकम बेटर, ओके। सरपास मींस एक्सीड और वी कैन से बिग ग्रेटर देन, तो ये सिनोनिम हो गया। डिक्रीज मतलब हो जाता है मेक और बिकम स्मॉलर और फ्यूअर इन साइज, अमाउंट, इंटेंसिटी और डिग्री। सो सिनोनिम बताना था, तो थर्ड विल बी द करेक्ट। 21, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एमर्ज। एमर्ज मतलब हो जाता है मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग, बिकम विजिबल। सरफेस मतलब हो जाता है आउटसाइड पार्ट और वी कैन से अपर मोस्ट लेयर ऑफ समथिंग। अपीयर मतलब हो जाता है आपका, अपीयर मीन्स कम इनटू लाइट और वी कैन से बिकम विजिबल और नोटिशिएबल, ओके। डिसअपियर मतलब हो जाता है आपका सीज टू बी विजिबल, ओके, सीज टू बी विजिबल। अनाउंस का मतलब हो जाता है मेक अ फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ फैक्ट, अकरेंस और इंटेंशन। सो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिसअपियर, ओके। सो थर्ड विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 22, सभी लोग आंसर करेंगे भाई 22 का। चलो, एंटोनिम बताना है मेलो का, फटाफट बताओ भाई। सौरभ, आंसर इट। मेलो, मेलो मतलब हो जाता है आपका प्लीजेंटली स्मूथ और सॉफ्ट और वी कैन से फ्री फ्रॉम हार्शनेस। हार्ड मतलब हो जाता है आपका मीन्स हार्श और अनप्लीजेंट टू द सेंसेस, ओके। सॉफ्ट मतलब मीन्स हैविंग अ प्लीजिंग क्वालिटी इन्वॉल्विंग अ सब्टल इफेक्ट और कॉन्ट्रास्ट रेदर देन सॉफ्ट डेफिनेशन। शाइनी मतलब हो जाता है आपका रिफ्लेक्टिंग लाइट टाइपिकली बिकॉज वेरी क्लीन और पॉलिश्ड। मीडियम मतलब हो जाता है आपका मीन्स अबाउट हाफ वे बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑफ साइजेस और अनदर क्वालिटी और वी कैन से एवरेज, सिंपल, ओके। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। मेलो का क्या हो जाएगा? हार्ड। मेलो मतलब प्लीजेंटली स्मूथ और सॉफ्ट। हार्ड मतलब भाई आपका क्या हो जाता है? आपका हार्श और अनप्लीजेंट टू द सेंसेस, ओके। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। 23rd का आंसर करें सभी लोग। चलिए 23rd का आंसर करें। Select the correct passive voice from the given sentence. The commander ordered his soldiers to move forward and attack the enemy camp. The soldiers were ordered. अच्छा, पैसिव वॉइस बनाओ इसका फटाफट से। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करो पहले तो, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया आपका ये, ऑब्जेक्ट हो गया ये, ओके। तो हिज सोल्डर्स पहले आएगा, ओके। ऑर्डर सेकंड फॉर्म है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका वर ऑर्डर देखना है आपको। इसमें लिखा हुआ है ये गलत है, इसमें लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है। दा है इधर, ये सही हो सकता है, ठीक है, और ये भी गलत है। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक मिनट रुको, इसमें देर है, इसमें क्या है ये गलत हो गया भाई, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए लिखो भाई, सॉरी ये वाला। एक मिनट, क्या हो रखा है? ये ए होगा, ठीक है, ये वन है तो ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू बी मूव्ड है गलत है भाई, इसका नहीं बनेगा पैसे, पैसे इसका बनेगा मेन वर्ब का, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वाला सही होगा। द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड बाय देयर कमांडर टू मूव फॉरवर्ड एंड अटैक द एनिमी कैंप्स। फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 24, सभी लोग आंसर करेंगे। सीता हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस। So, क्या करना है आपको? फर्स्ट का आंसर करना है फटाफट से। इन द सेंटर आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सीता हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस, ओके। सो बेसिकली नो टेस्ट इन आपका गलत है, इट शुड बी नो टेस्ट फॉर, ओके। टेस्ट फॉर समथिंग होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस
Practice set. Okay, given below are 4 jumbled sentences. Out of the given options, pick the one that gives their correct order. चलिए आंसर करिए. ट्वेंटी फाइव आंसर करें इसका. सो चौथा आपका सही हो जाएगा. ठीक है, ए विल बी द स्टार्टिंग स्टेटमेंट. तो ये आपको ध्यान रखना है. ओके, तो व्हेन वी कनेक्ट द सेंटेंसेस टू फॉर्म एन आइडिया, इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देम. बिना रिलेशन के सही नहीं होगा. ठीक है, द गिवन सेंटेंसेस टॉक अबाउट द लॉटरी सिस्टम एंड हाउ पीपल स्पेंड देयर हार्ड अर्न्ड मनी इन इट. ओके, तो जो पार्ट है पैराग्राफ का वो डी से स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है, एक मिनट रुको, ये आपका गलत है भाई. इट शुड बी इसमें रॉन्ग है भाई. ये इसका कुछ और होना चाहिए. इसका आंसर करना जरा है फटाफट से. ई होगा ना सर? किसका ई होगा सौरभ? ओके, इसका सी होना चाहिए वैसे. सॉरी, इसका होना चाहिए आपका ये सेकंड वाला. A few years ago, I was the chief guest at a small function. Okay, और ये स्मॉल फंक्शन हुआ था. ये दिस वाज हेल्ड इन अ हॉस्टल ऑफ पुअर स्टूडेंट बिल्ट बाय फिलैंथ्रोपिस्ट. ओके ओके, देन उसके बाद आएगा आपका ये अकोमोडेशन एंड फूड वर गिवन फ्री, बट द इनमेट्स ऑफ अ हॉस्टल हैड टू बियर अदर एक्सपेंसेस लाइक क्लोथ एंड टॉयलेटरीज. ओके, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला. हाँ, सेकंड होगा इसका भाई. बिल्कुल करेक्ट है. वो गलती से मैंने 4 बोल दिया. ओके, सेकंड विल बी द करेक्ट. ये ई किसका लिखा है आपने? ई होगा ना सर? ओके, चलो मिलते हैं सर हम नेक्स्ट सेशन में. इसको शेयर कर देना, ठीक है, विद योर फ्रेंड्स, ताकि बाकी लोग इसे ज्वाइन कर सके. ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन.